Good morning, dear students. So today we are going to discuss about last topic of this entire chapter. In last lecture, we have discussed about role of microorganisms to get clean energy source, that is biogas, as well as we have also discussed use of microorganism as biofertilizers, which is direct involvement of the agricultural industry. Today we are going to discuss about role of microorganisms as biocontrol agents. So majorly this application of microorganism is dealing with agricultural field. We know that we are having number of the biocontrol agents. Now what is biocontrol agent? First of all, biocontrol means controlling the life. Okay, so जैसे if we are using herbicides, weedicides, pesticides, type of the drugs or medicines, or you can say chemicals in agriculture, all these are biocontrol agents. Okay, because they are actually killing the living organisms, they are controlling the growth of the living organisms, and that's why they are having importance particularly in agricultural industry. But what is the other side of this entire condition? That is a big question. Because from the one direction, if we are observing these biocontrol agents, they are looking a helpful substance, they are looking like friends of the human being, but it is not exactly true. Though they are pesticides, weedicides, insecticides, and they are helping to increase the production of the agricultural produce, but they are synthetic chemicals, and these synthetic chemicals are non-degradable. वो डिग्रेड नहीं होते हैं naturally. As they are non-degradable, they are persisting for a long period of time in soil, as well as because of the flushing of the soil during the monsoon season or some other conditions, those chemicals are going to be leached out in the water bodies. Ultimately, because they are non-biodegradable compounds, they will come to the food chains, and ultimately they will reach to the human body. And all these compounds are sides, weedicides, herbicides, pesticides, insecticides. What does this side mean? Which is actually poison. So what exactly we are doing? We are increasing the production using these chemicals, toxic compounds, but as they are non-degradable, ultimately they will come to the environment and they will reach to the human body. And obviously they can cause variety of the mutations, they can cause variety of the cancers and some other physiological problems. So now it is the demand of time that we have to control the use of this synthetic non-degradable compounds in agriculture as well as in other practices. So we have also found one option as microorganisms being biocontrol agents. So some of the microorganisms are there which can help us to be a potent biocontrol agent in agriculture and the other industries. Let's discuss about this. So what is biocontrol? Biocontrol is the use of biological methods for controlling plant diseases and pests. Use of biological methods for controlling what? Some plant oriented disease and pest. For example, ladybird, which is a common beetle, it controls aphids. Okay, you can see this is the aphid. This aphid can damage the plant, but this ladybird, which is a beetle, it can actually control this aphid growth. The dragonflies can control, sorry, this is the dragonfly, I misidentified it. This is the dragonfly. This dragonflies can control mosquitoes.
Okay, so this is natural biological mechanism. In nature, these things are going on. This ladybird, which is a beetle, which can control aphid. Now we know about aphid. Aphids are generally boring the stems of the plants. अगर stem को bore करेंगे तो xylem phloem rupture हो सकते हैं, plant को nutrition नहीं मिलेगा, ultimately plant will die. Some fruit borer aphids are there. Okay, तो जो fruits हैं, soft fruits, pulpy fruits, उसको भी ये bore कर सकते हैं, ड्रिल कर सकते हैं फ्रूट्स को. अगर ऐसा ड्रिलिंग करेंगे तो फिर वो फ्रूट जो है उसका डिकेइंग हो जाएगा. यू कैन नॉट सेल दैट फ्रूट इन मार्केट. अल्टीमेटली इट इज इकोनॉमिकली अफेक्टिंग द फार्मर. But naturally this ladybird can control aphids. In the same way dragonfly can control variety of the mosquitoes. What we are doing, तो एफिड्स है या मॉस्किटोज है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? सो वी आर यूजिंग केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स व्हिच कैन किल बोथ. ओके, अब देखिए यहाँ पे आपके सामने 4 एग्जांपल दिए गए हैं. एक है लेडीबर्ड बीटल, एफिड, ड्रैगनफ्लाई, मॉस्किटो. बट आउट ऑफ दिस 4, ladybird and dragonfly are helpful to the human, and aphids and mosquitoes are actually damaging the agriculture, and that's why they are not useful to the human being. And to control this aphids and mosquitoes, we have used a simple way: sprinkle chemical pesticides and insecticides. But dear students, this chemical pesticides and insecticides are not targeting only aphids and mosquitoes. They will target to both of the organisms. Matlab they can kill aphids, mosquito, as well as they can kill ladybird and dragonflies, which are helpful actually. तो इसलिए यहाँ पे लिखा है chemical pesticides and insecticides kill both useful and harmful organisms and cause pollution. तो एक तो पूरा फूड वेब जो है, ऑर्गेनिज्म पिरामिड पूरा जो उसको डैमेज कर रहे हैं, as well as they are non-degradable, they are poisons, they are also polluting the environment. But biocontrol method has no such problems. अगर हम biocontrol mechanism use कर रहे हैं, then obviously ये जो problems है उसको हम reduce कर सकते हैं, या तो उसको हम completely nullify कर सकते हैं. Now about microbial biocontrol agents. So first one which is discussed over here is the name of bacteria, Bacillus thuringiensis. In the abbreviated form, it is known as BT. अब ये जो theory है about Bacillus thuringiensis, that we are going to learn 2 times in the syllabus. एक हम इसको चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, और दूसरा हम इसको इस चैप्टर में 10th चैप्टर में पढ़ रहे हैं. So what exactly this Bacillus thuringiensis is doing? You can see the Bacillus thuringiensis. It is having bacillus मतलब road shape का bacteria है. So what it is exactly doing? It control butterfly caterpillars. Okay, तो किसी भी butterfly का जो caterpillar है उसको ये control करने का काम करता है, उसको kill करता है. Now what is the need to kill this caterpillar? Because these caterpillars are actually infesting on cotton plant. And what exactly they are doing? They are damaging the cotton of the cotton plant. So obvious है कि फार्मर को इकोनॉमिकल बहुत लॉस होने वाला है अगर ऐसा कैटरपिलर कॉन्स्टेंटली, बहुत सारे कैटरपिलर अगर कॉटन क्रॉप जो है उनको ये अगर डैमेज कर रहे हैं तो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी कम होगी और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा फार्मर की वेल्थ पे. द कॉमन मेथड वाज देयर, स्प्रिंकल इंसेक्टिसाइड, तो ये कैटरपिलर मर जाएंगे. लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं जो हेल्पफुल है, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा, वो भी तो किल हो जाएंगे. जैसे बहुत सारे पोलिनेटर्स होते हैं, वी नो द रोल ऑफ पोलिनेटर.
तो ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे भी बटरफ्लाई होंगे जो एक्चुअली प्लांट को, क्रॉप को डैमेज नहीं करते हैं, बट दे आर हेल्पिंग द प्लांट इन दैट वे, दे आर परफॉर्मिंग द पोलिनेशन ड्यूटी। तो उसको किल नहीं करना है, हमारा मैकेनिज्म होना चाहिए टारगेटेड मैकेनिज्म। तो उस टारगेटेड मैकेनिज्म के लिए ही हमारे पास बैसिलस thuringiensis है। नाउ हाउ दिस बैसिलस thuringiensis एक्टिंग, व्हाट इज द एग्जैक्ट मोड ऑफ एक्शन, ये सब हम चैप्टर नंबर 12 में डिस्कस करेंगे। लेकिन फार्मर्स के लिए बैसिलस thuringiensis कैसे हेल्पफुल है उसका एक कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। यू कैन सी द ड्राइड स्पोर्स ऑफ BT, that is Bacillus thuringiensis, which is available in sachet, are mixed with water and sprayed on to the vulnerable plants such as brassica and fruit trees. These are eaten by the caterpillar. In their gut, the toxin is released and larvae get killed. समझिए इसको भी। So now market में हमें ये Bacillus thuringiensis जो है, बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया है उसके ड्राइड स्पोर्स हमें नेचुरली अवेलेबल है। नेचुरली मतलब हमें मार्केट में कॉमर्शियली ये मिलते हैं। तो वो जो पाउच है उसमें जो भी स्पोर्स है बैक्टीरिया के, स्पोर का मतलब क्या है यहाँ पे, इट इज नॉट लाइक फंगल स्पोर, ये है एक बैक्टीरिया ही है। ये जो स्पोर है वो एक बैक्टीरिया ही है, लेकिन वो सस्पेंड कर चुका है अपनी लाइफ को, डॉर्मेंट फेज, लाइक फ्रॉग एंड ऑल दिस, वो अपने डॉर्मेंट फेज में है। एंड अपॉन मिक्सिंग विद द वाटर, द डॉर्मेंट फेज ऑफ द लाइफ ऑफ दिस बैक्टीरिया विल बी रिमूव्ड ऑफ, और वो वापस लाइव हो जाएगा। This live bacteria will be sprayed to the vulnerable plants. Vulnerable plants का मतलब the plants which are having the impact of this caterpillar, okay, जो directly targeted हैं। ऐसे कौन से प्लांट है, ब्रासिका एंड फ्रूट ट्रीज। अब ये जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का जब हमने स्प्रिंकल किया प्लांट के ऊपर, तो ऑब्वियसली प्लांट के सरफेस के ऊपर ये बैक्टीरिया वहां पे स्टिक हो जाएंगे। Now what happens? The caterpillar is going to eat up the plant, some part of the plant, some branch or leaf or whatever. So along with the eaten part of the plant, this bacteria will be also getting into the gut of this caterpillar. This bacteria is going to release the toxin in the gut of this caterpillar. और ये caterpillar actually है क्या? It is larva of the butterfly or moth, you can say. So in the gut of this caterpillar, this bacteria is going to release the toxin, और वो toxin activate होके क्या करता है, caterpillar को kill कर देता है। So in this way, you can control this pest, you can say insect pest, which are actually infesting on the commercially important crop. तो ये एक मेथड था बैसिलस thuringiensis को स्प्रिंकल करके इसको कंट्रोल करने का। लेकिन अभी एडवांसमेंट और भी हो चुका है, जिसके बारे में चैप्टर 12 में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वो स्टेटमेंट यहाँ पे आपको बताया गया है, दैट इज साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड बैसिलस thuringiensis टॉक्सिन जीन्स इनटू प्लांट्स, फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन। अब ये बीटी कॉटन जो टर्म है ये सभी ने सुना है, ये कॉमन है, सिंस सो लॉन्ग इट इज इन प्रैक्टिस इन इंडिया। तो साइंटिस्ट ने ऐसा भी प्लांट डेवलप कर दिया है जिसके अंदर ऑलरेडी इस बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के जो जीन्स है, टॉक्सिक जीन्स है, वो प्लांट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया है। मतलब अब आपको बैसिलस thuringiensis का जो स्प्रे है वो फार्म में करने की जरूरत नहीं है। The plant itself is having the defense mechanism against the caterpillar. मतलब वो जीन्स जो हैं बैक्टीरिया के, वो प्लांट के अंदर डाल दिए गए हैं। Now the plant is going to express this toxin, और जैसे ही कैटरपिलर उसको बाइट करेगा, उस टॉक्सिन प्रोटीन का जो फॉर्मूला है वो उसके गट में जाएगा और वहां पे जाके उसको डैमेज करेगा। तो कैटरपिलर विल बी किल्ड।
ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसको हम चैप्टर 12 में स्टडी करेंगे कैसे ये पूरा होता है। अब सिर्फ मैं आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ ऐसा तो क्या है बैसिलस thuringiensis के पास, so that this caterpillar is getting died. Actually, this Bacillus thuringiensis bacteria is having some genes which are actually producing toxins. और ये टॉक्सिन और कुछ नहीं है, दे आर प्रोटीन्स। तो ये जो प्रोटीन है उसको क्रिस्टल प्रोटीन्स भी बोला जाता है, दे आर क्रिस्टलाइन प्रोटीन, इसलिए इसको क्रिस्टल प्रोटीन बोला जाता है। और जो जीन्स हैं उस जीन्स को क्राई जीन्स बोला जाता है, CRY, क्राई, क्रिस्टल का एब्रीविएटेड फॉर्म क्राई, क्राई जीन्स। तो ये क्राई जीन्स क्या किए जाते हैं प्लांट में, इसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं पहले से। सो उसमें से जो भी सीड बनेंगे उन सीड के पास पहले से ही ये जीन होंगे, और उस सीड को अगर आप ग्रो कर रहे हैं then ultimately you will be having the plant which is having this toxin genes, and so that if the caterpillar is infesting on it, it is going to be killed. Second mode of biocontrol, that is trichoderma. ट्राइकोडर्मा SP, SP का मतलब है स्पीसीज। तो ट्राइकोडर्मा जीनस का नाम है, उसकी स्पीसीज जो है कुछ वो, मतलब ट्राइकोडर्मा एक फंगस है, इट इज अ जीनस ट्राइकोडर्मा, उसके कुछ स्पीसीज है, दे आर हेल्पफुल एज अ बायोकंट्रोल एजेंट। You can see over here, they are seen in the root ecosystem. They control several plant pathogens. ये ट्राइकोडर्मा का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्राइकोडर्मा की ग्रोथ प्लांट के रूट के साथ। तो सॉइल के थ्रू जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उसमें से प्लांट को ये बचाने का काम करता है ट्राइकोडर्मा, विच इज द फंगस। सो नेचुरली तो ये करता था, अब हम क्या करते हैं इसी फंगस को हमारे फार्म में इनकॉर्पोरेट करते हैं, सॉइल के साथ इसको मिक्स करते हैं, सो दैट in the root system of the plant this trichoderma will be there, and so that plant is not going to acquire soil borne disease infections particularly. तो एक ये भी मोड है। थर्ड वन इज बैक्यूलोवायरसेस। तो जो बैक्यूलोवायरस है स्पेशली ऑफ द जीनस न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस, न्यूक्लियोपोलीहेड्रो के ये जीनस के जो वायरसेस है बैक्यूलोवायरस पर्टिकुलरली, उसको हम यूज करते हैं। अब ये बैक्यूलोवायरस जो है ना, जैसे अभी हम देख रहे हैं कोरोना, तो कोरोना इज अ ह्यूमन वायरस क्योंकि वो ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। HIV ह्यूमन वायरस, ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। TMV टोबैको मोज़ेक वायरस सिर्फ प्लांट को इन्फेक्ट करता है। CAMV कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस सिर्फ कॉलीफ्लावर को इन्फेक्ट करता है। तो ऐसे ये बैक्यूलोवायरस है विच कैन इन्फेक्ट ओनली इंसेक्ट्स एंड सम अदर आर्थ्रोपोड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इट कैन अटैक्स इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। ओके, तो यहाँ पे आपको बैक्यूलोवायरस का एक स्ट्रक्चर दिखाया है। ओके, यू कैन सी द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्यूलोवायरस, राइट। तो बैक्यूलोवायरस क्या करेगा, अब थोड़ा तो आइडिया हमें आ ही गया होगा कि इट कैन अटैक द इंसेक्ट, तो मतलब एग्रीकल्चर में इसको यूज कर सकते हैं बैक्यूलोवायरस को। अब स्पेशलिटी ये है वायरस की, वायरस आर होस्ट स्पेसिफिक। अगर HIV ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है तो सिर्फ ह्यूमन को ही इन्फेक्ट करेगा, प्लांट को नहीं कर सकता, इंसेक्ट को नहीं कर सकता। कोरोना ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकता है तो अदर एनिमल को नहीं कर सकता है, एज वेल एज प्लांट और इंसेक्ट को नहीं कर सकता है। सो इसीलिए हम बैक्यूलोवायरस को यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू इन्फेक्ट ह्यूमन एंड प्लांट्स। तो यहाँ पे हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इट इज सुटेबल फॉर species specific narrow spectrum insecticidal applications and desirable in IPM program, that is integrated pest management program to conserve beneficial insect। अब ये जो बैक्यूलोवायरस है वो सभी इंसेक्ट को किल नहीं करता है, इट कैन किल ओनली सम स्पीसीज ऑफ द इंसेक्ट। अब वो स्पीसीज कौन सी है, द स्पीसीज विच आर एक्चुअली डैमेजिंग द एग्रीकल्चर।
इट इज नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। नैरो स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रेंज। कैसी रेंज है इसकी? नैरो रेंज है। किसके लिए नैरो रेंज है? तो इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन मतलब बहुत कम रेंज के जो है उसमें इसकी इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी हमें देखने मिलती है। कम रेंज में मतलब बहुत वास्ट नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट तरह के इंसेक्ट को ये कील नहीं करता है। इट कैन कील ओनली डिजायरेबल, जो हमें कील करने हैं ऐसे ही इंसेक्ट पेस्ट को ये कील करता है। एंड दैट्स व्हाई इट इज डिजायरेबल, व्हिच इज डिजायरेबल इन आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। अब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम का मतलब क्या है? सो ये इसीलिए गवर्न किया जाता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, सो दैट व्हेन एवर यू आर यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट, चाहे फिर वो आप केमिकल यूज कर रहे हैं, चाहे फिर आप ऐसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं, योर टारगेट शुड बी हार्मफुल इंसेक्ट। जो एग्रीकल्चर को हार्म करते हैं ऐसे इंसेक्ट ही टारगेट में रहने चाहिए। लेकिन जो बेनिफिशियल है, जो पोलिनेशन करते हैं या कुछ भी हेल्प भी नहीं करते हैं और डैमेज भी नहीं करते हैं, न्यूट्रल है, ऐसे इंसेक्ट को भी हार्म नहीं होना चाहिए। ओके, कंजर्वेशन होना चाहिए उनका। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क 1 मार्क में पूछा जाता है, व्हाट इज द एम ऑफ द आईपीएम। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम का एम ये है टू कील द हार्मफुल insect pest with respect to agriculture and to conserve the beneficial insects as well. That is the aim of the integrated pest management program. So dear students, with this notes, we have ended up with this chapter. In this chapter, if you are having any doubts, any queries, any questions, you can call me, you can WhatsApp me. One more thing I would like to tell you about this chapter, इस chapter को आप पूरा 1 or 2 पेज में summarize कर सकते हैं। Entire chapter can be summarized. Okay, इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम हैं, वो बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजुआ है, उसका ऑर्गेनिज्म टाइप और उसका एप्लीकेशन, और उसमें से जो भी एक्टिव कंपाउंड या प्रोडक्ट हमें मिल रहा है उसका नाम। तो 4 कॉलम में अगर आप पूरा डिटेल बनाएंगे तो 1 और 2 पेज के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप पूरे चैप्टर को समराइज कर सकते हैं, सम अप कर सकते हैं। और नीट में उतना ही पढ़ के जाना है, ओनली 1 और 2 पेज। ओके, even board exam also, from this chapter you will be asked max to max 3 marks question। 5 marks का क्वेश्चन यहाँ से आने का कोई स्कोप नहीं है। ओके, तो इसी तरह से इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है, और इजी गोइंग चैप्टर है ये। ऐसा चैप्टर है जिसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए नीट एग्जाम में, बिकॉज अगर इसका आंसर गलत हो रहा है दैट मीन्स यू आर लेगिंग इन द स्कोर मेकिंग, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स विल हैव द करेक्ट आंसर फॉर दिस चैप्टर, तो आपके भी गलत नहीं होने चाहिए। फाइन, so with this notes I am ending. Have a nice day.